Assalamu alaikum, 9th class. I'm your teacher, Mrs. Hadija. Nowadays, we are doing chapter 3, that is office automation. Till now, you have learned two most popular or most commonly used office automation tools, that is MS Word and MS Excel. You learned some of the basic tasks that can be performed using these two office automation tools. From today, we will start InPage, which is another tool which is used as office automation. InPage is actually considered as Urdu editor, or we can say, call it Urdu processor. And as it is Urdu editor or Urdu processor, we can type Urdu using this application. It is used for Windows, and it is one of the commonly used Urdu editor for Windows operating system. If we talk about history or some of the information of Urdu InPage as Urdu editor, then Urdu editor was introduced in 1994 and it runs on Windows operating system. It means it works with Windows operating system. Otherwise, for typing Urdu in our mobiles, we have lots of other features, like we can just install Urdu keyboard and we can type Urdu. But for writing Urdu on Windows, you must need some application like InPage. There are other applications also available which you can use for Urdu typing. InPage is considered as one of the standard for typing Urdu. Initially, it is not look like not easy to type Urdu using InPage, but after some time, you can type any type of Urdu material on InPage. What we can create or what can be composed using InPage. There are lots of different documents that can be created using InPage as Urdu processor, like different columns which you observe in newspapers and translation of Quran Pak, और समटाइम्स आप जो हैं वो डिफरेंट फ्लायर्स जो आपके घर आते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए वो भी उर्दू में कंपोज किए गए होते हैं और वो भी इन पेज को यूज़ करके क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं। इसके अलावा अगर उर्दू में एप्लीकेशन लिखनी है या उर्दू में कोई एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़पेपर के अंदर देनी है, फॉर ऑल these tasks we can use InPage as Urdu as Urdu editor. इसके अलावा जो आपकी उर्दू और इस्लामियात की बुक्स होती हैं वो तमाम भी InPage जैसे ही उर्दू एडिटर इसके अंदर कंपोज की गई होती हैं, उसके अंदर टाइप की गई होती हैं. First, we will learn how we will get InPage, or how we will have InPage in our computer or laptop. For this, you have to download and install InPage. Today, I will tell you how we will download and install InPage from internet. First, we will open our browser, like I'm using Google Chrome. And in search bar, we will write download InPage 2009. क्योंकि मैं ऑलरेडी मैंने सर्च किया था तो मेरे पास इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है. आपको, आप क्योंकि फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे होगे तो आप पूरा आपको मोस्ट ऑफ लिखना पड़ेगा, या आपका जो ब्राउजर है वो आपको ऑप्शन दे देगा. यहाँ आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो गूगल InPage जो है वो डाउनलोड करने का
होता है लेट्स सी जो मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी किया था वो इस लिंक से किया था रहीम सॉफ्ट से। मैं यहीं से आपको इंस्टॉल करना बता देती हूँ। यहाँ से काफ़ी इजीली जो है इंस्टॉल हो गया था। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड आफ्टर some time after some processing you will find a link to proceed or link to download। और जैसे ही जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो आप यहाँ देखेंगे कि सेटअप फाइल जो है जिसके थ्रू इंस्टॉल किया जा सकता है इन पेज वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। अब ये कहाँ सेव होता है? जो भी चीज़ आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर सेव हुई होती है। आप सर्च करके भी जो है वो डाउनलोड फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप फोल्डर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जब जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको जो है इंस्टॉल्ड फाइल इसकी मिल जाएगी। ये जिप फाइल है, ठीक है। और चूंकि मैंने ऑलरेडी की हुई थी तो इसने इसको 1 के नाम से डाउनलोड कर दिया है। हम इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम ये डाउनलोड किए, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम करेंगे इस पर डबल क्लिक, राइट, एंड हियर इज द सेटअप फाइल, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे, it will ask you or it will grant for permission कि क्या वाकई ये ऐप जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। You will click on yes. Then a wizard will be opened. Anything which appears in a window to help you to install some software, it is called wizard, ठीक है। आप ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन इन पेज की यहाँ पे गिवन होगी। यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। हियर यू विल हैव टू एग्री विद द लाइसेंस और एग्रीमेंट कि हम इसको आगे, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होती हैं कि हम इसको आगे सेल नहीं करेंगे और हम इसको सिर्फ जो है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप आई डू नॉट एग्री करेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जा सकेंगे। यू विल click on next. Here you can write your username. Let's see, मैं लिख देती हूँ हदीजा, ठीक है। You will click on next और यहाँ पे ये पाथ आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट सी के अंदर जो प्रोग्राम्स फाइल्स हैं उसके अंदर ये पेज इंस्टॉल होगा और यूजुअली जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ही होते हैं। आप चेंज के ऊपर क्लिक करके पाथ चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एज इट इज रहने दूंगी। देन it is asking for creating shortcut on desktop. Then here some basic information that wizard is going to install in page 2009 और in page 2009 की जो है basic information है। और ये कि जैसे ही मैं next के ऊपर क्लिक करूंगी तो installation start हो जाएगी। So within few seconds in page will be installed in your computer. We'll click finish and when you will go to desktop, in page will be on in your computer and a shortcut icon will be created on the desktop, right? This is the method that how we can download and how can we install in page into our computer. First you have to go to you have to open web browser और वहाँ पे जाके आप जो है वो डाउनलोड इन पेज 2009 लिखेंगे। हम इसको इसलिए डाउनलोड करेंगे ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अदरवाइज आप कोई भी और उर्दू एडिटर वैसे यूज करने के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए आपने इनपेज 2009 ही इंस्टॉल करना है क्योंकि आपके सिलेबस में इनपेज 2009 इंक्लूडेड है।
देन हम उसको इंस्टॉल करेंगे बाय डबल क्लिकिंग ऑन द एक्जी फाइल, या जो सेटअप फाइल भी कहलाती है। इस तरह से जो है आपका इन पेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी ओपन और हाउ कैन वी रन इन पेज आफ्टर इंस्टॉलिंग इट इनटू आवर कंप्यूटर। ओपन करने का मतलब है हम उसको फर्स्ट टाइम रन कैसे करेंगे। One method is by going into the start menu. Here you can find, यहाँ पे ये मौजूद है। आपको पता है स्टार्ट बटन पे जब भी हम क्लिक करते हैं विंडोज एक्सपी और विंडोज 7 तक ये आइकन जो है वो डिफरेंट है, कलरफुल में स्टार्ट बटन आपको नजर आ रहा है, लेकिन विंडोज 8 ऑनवर्ड ये आइकन जो है चेंज हो गया है, बट ये स्टार्ट बटन का ही ऑप्शन है। आप जब इस पे क्लिक करते हो तो आपको जितनी भी आपके कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाती हैं। तो ये इन पेज है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो। अदरवाइज जो आप डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट आइकन क्रिएट हुआ है उस पे भी डबल क्लिक करके इन पेज को ओपन कर सकते हो। समटाइम ये जो है थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने के लिए, जब तक हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट क्या करना है इन पेज के अंदर। दिस particular was that how we will open in page आफ्टर इंस्टॉलिंग इट इनटू अवर कंप्यूटर। क्या हम स्टार्ट बटन से जाके भी इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज जो डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट आइकन क्रिएट हुआ है उस पर भी डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, हाउ वी विल मैनेज डॉक्यूमेंट्स इन पेज। जैसे हम MS वर्ड हमने सीखा था, स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने उसको जब फर्स्ट टाइम हम उसको ओपन करते हैं तो क्या डिफॉल्ट साइज पेज का होना चाहिए, क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। इट कम्स इन मैनेजिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इन पेज को भी मैनेज, इन पेज के डॉक्यूमेंट को भी क्रिएट करने के लिए यू हैव टू सेट द बेसिक सेटिंग्स इंक्लूडिंग पेज साइज, मार्जिन, कॉलम्स, या जो पेज का लेआउट है जिसको ओरिएंटेशन कहा जाता है, पोर्ट्रेट भी हो सकती है। पोर्ट्रेट जो आपका नॉर्मल A4 साइज का पेज होता है जिसमें विड्थ कम और लेंथ ज्यादा होती है, पोर्ट्रेट पेज साइज होता है। अदरवाइज अगर आप विड्थ ज्यादा रखना चाहते हो तो आप देन लैंडस्केप जो है ओरिएंटेशन चूज करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो विद द डिफॉल्ट सेटिंग्स जो कि हम जब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और हमें शो की जाती है हम उसी को ही चूज करते हैं। When you will first time launch in page, this type of interface will be shown. Then you will go to file and new. This will help you to open a new document in page. Here are some default settings of in page. आप जो हैं margins जो हैं यानी जो स्केल्स हैं, जो पेज की विड्थ और लेंथ है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, बट मैं इसको एज इट इज रहने दूंगी और जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट ही रहने दूंगी। ठीक है, जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं मैं उसके साथ ही जो है इसको ओके प्रेस करूंगी। देन a new document in page will be created for you. So this is method that how we open a new document or how we create a new document in page or using in page as Urdu editor. Next thing is what are the basic components of in page। जैसे हमने MS Word के बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े, हमने एक्सेल के बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े, इसी तरह से इन पेज के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, हम इन पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे MS वर्ड की तरह के यहाँ पे भी इसके स्केल्स हैं। ये horizontal scale है, ये इसका vertical scale है, which are used to set margins. Then the मेन्यू बार, ठीक है, जैसे फाइल ऑप्शन के अंदर बेसिक ऑपरेशंस मौजूद हैं, टू ओपन अ फाइल, टू क्लोज फाइल, टू सेव फाइल एंड टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और टू प्रिंट फाइल, और अगर हम एग्जिट करना चाहते हैं तो इसके यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं वो भी फाइल मेन्यू के अंदर आपको नजर आ जाएंगे। देन एडिट मेन्यू है, तो ये जो कंप्लीट बार दिस कार्ड मेन्यू बार। देन हियर आर सम ऑफ द टूल्स जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स हैं और कुछ बेसिक टूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे, बट दीज आर टूल्स। और ये इसका वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम एक्चुअली टाइप करते हैं उर्दू कीबोर्ड को यूज करके। सो एंड हियर आर सम अदर टूल्स, जैसे अगर हमने किसी चीज को पॉइंट करना है तो ये एरो होगा, और टाइपिंग के लिए ये कर्सर, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है, तो ये इसका ये कर्सर आ जाएगा। देन देयर आर सम बेसिक शेप्स दैट यू कैन ड्रॉ in page as well, like MS Word। जैसे MS Word के अंदर डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, डिफरेंट ड्राइंग्स बनाने के लिए। इन पेज के अंदर भी कुछ शेप्स दी गई हैं जिनको हम यूज करके डिफरेंट ड्राइंग्स बना सकते हैं। देन हियर इज ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट कलर, then you can bold your text, you can italic just like in MS Word. Then here are some of the writing styles that you can choose for your text, and then there are languages, right। बॉटम पे आप देखेंगे यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इन पेज को यूज करके हम इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकते हैं, लाइक माय नेम इज खदीजा। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करूंगी देन आई कैन टाइप उर्दू, लाइक मेरा नाम एंड सो ऑन, राइट। और लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे हमें जो है वो पेज नंबर शो हो रहा होता है। जब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होता है कि 1/2 के आप फर्स्ट पेज पे हो, टोटल 2 पेजेस हैं, और इस वक्त ये पेज जो है 100% जूम पे ओपन हुआ है। सो दिस इज some of the basic components that I have described for you of InPage. What is next? Next is that how can we set keyboard for our InPage? By default जब हम InPage इंस्टॉल करते हैं और हम उसको ओपन करते हैं तो हो सकता है कि जो कीबोर्ड की सेटिंग है वो ना हो जो हमें चाहिए होती है। यूजली जो हम कीबोर्ड की सेटिंग चूज करते हैं दैट इज फोनेटिक कीबोर्ड सेटिंग। फोनेटिक कीबोर्ड सेटिंग का एडवांटेज ये होता है कि फोनेटिक कीबोर्ड की जो कॉरस्पॉन्डेंस है एज कंपेयर टू आवर कीबोर्ड लेआउट वो 1 to 1 होती है। इट मीन्स कि मेजॉरिटी जो उर्दू के हरूफ तहजी हैं दे कैन बी गेट बाय टाइपिंग एग्जैक्टली सेम लेटर। जैसे ए से अलिफ टाइप होगा, बी से जो है बे की साउंड जो है या बे जो है वो टाइप होगा। इसी तरह से जो एस है उससे सीन टाइप होगा। तो इट मीन्स कि जो फोनेटिक कीबोर्ड है उसकी हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उससे 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे जो एग्जैक्टली हमारी वो की प्रेस करने से हमारा उर्दू का वो जो हरूफ तहजी है वो टाइप नहीं होता है। बट इन मेजॉरिटी केसेस हमें इतना मुश्किल नहीं होता है कोई भी उर्दू का हरूफ तहजी टाइप करना यूजिंग अवर स्टैंडर्ड इंग्लिश कीबोर्ड जिसके ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो हाउ वी विल सेट लेआउट ऑफ कीबोर्ड, we will go to edit menu, then you will go to preferences and here is keyboard preferences। यहाँ पे चूंकि मैंने ऑलरेडी बाय चूज किया हुआ है फोनेटिक, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आएंगे तो ये अरेबिक होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने इसको सेट कर देना है किस पे, फोनेटिक पे, राइट।
इसके अलावा अगर आपको उर्दू टाइप करते हुए मुश्किल हो तो यहाँ पे कीबोर्ड का लेआउट भी गिवन है कि क्या लेटर टाइप करने से क्या जो है उर्दू का हरूफ तहजी टाइप होगा, लाइक जी, कैपिटल जी यानी शिफ्ट के साथ जी टाइप करने से गैन टाइप होगा, और स्मॉल जी को टाइप करने से या प्रेस करने से गाफ टाइप होगा। बिल्कुल इसी तरह से की को टाइप करने से जो आपका काफ होता है वो टाइप होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से जो वाई है उसको प्रेस करने से जो है वो बड़ी ये टाइप होगी, देन आर से रे, और कैपिटल आर से रे टाइप होगी, ठीक है। जो वाव है वो डब्ल्यू को प्रेस करने से टाइप होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर टाइप किया जाता है और कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है। आज सिर्फ जो है बेसिक कंपोनेंट और जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वही आपको बताना है। तो आप एक तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं कौन सा लेटर टाइप करूंगी, तो उर्दू का कौन सा हरूफ तहजी टाइप होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इंटरनेट से भी फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फोनेटिक कीबोर्ड इंटरनेट से डाउनलोड करके सेव किया हुआ है, और यहाँ पे मैं इन पेज खोला हुआ है क्योंकि वहां से बार बार जाके देखना मुश्किल है। तो यहाँ पे आप फोनेटिक कीबोर्ड डाउनलोड करके रख सकते हो, और आपको कहीं को मुश्किल हो कि मैंने शिन कैसे टाइप करना है, या मैंने ज़्वाद कैसे टाइप करना है, मैंने तोई और जोई कैसे टाइप करना है, तो आप यहाँ पे स्विच करके देख सकते हो। सो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू in page, that how we will set keyboard layout, and we will set it to phonetic layout, और मैंने phonetic layout को चूज करने की रीजन भी आपको बता दी है। Right, the next thing is if we will create document in page, और हमने उसको क्रिएट करके उसके ऊपर कुछ टाइप कर लिया और हमने उसको सेव कर लिया, तो हम उसको फिर ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, कोई एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपने क्रिएट करके सेव कर लिया है, हम उसको ओपन कैसे करेंगे। डिफरेंट मेथड्स है, जैसे MS वर्ड में डिफरेंट मेथड्स को यूज करके एक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, इसी तरह से इन पेज में भी ऐसा होता है। पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव, लेट्स सी हम इसको रखते हैं नेम इसका फर्स्ट फाइल, फर्स्ट इन पेज फाइल में फर्स्ट उर्दू फाइल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इन पेज तो 9 के अंदर जो है वो फोल्डर के अंदर सेव होगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके पाथ को चेंज कर सकते हो, आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो, आप डी ड्राइव में कहीं भी और सेव कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यही पाथ रहने दूंगी। वी विल क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब आप इसको सेव करें तो जिसकी एक्सटेंशन है वो है क्या, .inp। जैसे MS वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .doc, एक्सेल की जो फाइल्स होती हैं वो होती हैं .xls, लेकिन जो इन पेज की फाइल्स होती है उनकी जो एक्सटेंशन है वो .inp होती है। ये INP अगर आप कहीं भी देखेंगे तो ये पहचान होती है इस चीज की कि ये इन पेज की फाइल है। By clicking on save, your file will be saved, ठीक है। हम जो है इसको क्लोज कर देंगे। अब हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसका एक मेथड ये है कि हम इन पेज को ओपन करेंगे। इट विल टेक फ्यू टाइम टू ओपन, राइट, एंड यू विल गो टू फाइल मेन्यू। ओपन से भी आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज MS वर्ड की तरह जो आपकी रिसेंट इन पेज की फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाती हैं। तो हमने कौन सी ओपन करनी है, फर्स्ट उर्दू फाइल। यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, ये आपके लिए ओपन हो गई, ठीक है। This is how we open and save and open in page files. Right, this was the last thing that we have to do today. I hope you have learned that what is in-page and why we use in-page, or what is the purpose of in-page, that we can create different documents using in-page. Let me show you another example of document that is created using in-page. Here is a document
and you can see how neatly and how well organized a document is created in Page as Urdu editor. There are very difficult words which are even very difficult to write with your hands, लेकिन यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है इन पेज को यूज करके क्रिएट किया गया है, देन इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया है. दिस इज another example of that where or why in page is used, or you can say what is the purpose of in page, right? Then we learn how can we install इन पेज इंटू अवर कंप्यूटर, और उसका जो बेसिक लेआउट है, जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, हम कैसे इन पेज को ओपन करते हैं और एक फाइल क्रिएट करने के बाद उसको सेव करते हैं और देन दोबारा हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा. इन योर नेक्स्ट लेक्चर यू विल लर्न सम ऑफ द बेसिक फॉर्मेटिंग और दैट वी कैन perform in InPage, and we will also learn how to type different sentences. At this level, you will learn some of the basic typing. Inshallah, we will do this in your next class. Up till until that time, what you have to do, you will download and install InPage using the method I have told you. Then you will try to write few lines on yourself, जिसको मेरा तारुफ कहते हैं. जितनी easily आप जितनी भी lines, 2 lines or 3 lines लिख सकें, वो आपने लिखनी है, and then you will have to share screenshots. Thank you so much, 9th class. I hope आपको समझ आया होगा that how we can work on InPage.